Myself. Hello friends, myself Rasika Pagaria. Today we are going to start with a new chapter, that is India during Mughal period. In this chapter we will be looking at the Mughal rule in India, reforms in revenue system, art, architecture, literature, trade, industry, social life, Mughal empire and Deccan. We are going to look at these 5 points in this chapter. So let's begin with the chapter. The period of Delhi Sultanate was the first phase of Islamic rule in India. अब जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, इट वॉज अ फर्स्ट फेज ऑफ इस्लामिक रूल इंडिया. लाइक तभी इस्लामिक रूल आया था इंडिया में, दिल्ली पे. वी हैव स्टडीड दिस फ्रेज इन चैप्टर 14. अपन ये सारे फ्रेज किस में देखे? वी हैव स्टडीड दिस फ्रेज इन चैप्टर नंबर 14. इब्राहिम लोडी was the last sultan of Delhi. Who was the last sultan of Delhi? Ibrahim Lodi. और उससे पहले कौन थी? रजिया थी. He died while fighting with Babur. Now how Ibrahim Lodi died? He died when he was fighting with the Babur. After that the Delhi Sultanate came to an end and the Mughal rule was established. अब क्या हो गया यहाँ पे? दिल्ली सल्तनत क्या हो गया? It came to an end और मुगल रूल आ गया इंडिया में. After the decline of the Sultanate, the Mughal rule dominated the political scene during 1526 CE to 107 CE. अब क्या हो गया? मुगल अब सल्तनत तो पूरा खत्म हो गया, अब मुगल रूल आ गया. अब मुगल ने क्या किया? मुगल रूल started dominating the political scene and it was a period during 1526 CE to 1707 CE. During this period, most of North and Central India and some parts of the Deccan were under their control. अब during this period जब मुगल आए तो क्या हुआ? बहुत सा नॉर्थ पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और बहुत सा डेक्कन और थोड़ा सा डेक्कन का पार्ट, इट वॉज कंट्रोल अंडर द मुगल. The Mughal period was prosperous as far as the development in the field of art, literature, administrative system, foreign relation, trade, etc. are concerned. अब जो मुगल पीरियड था ना, वो बहुत ही अच्छा था. किसके लिए? It was fruitful in the field of art and literature, administrative system, foreign relations, trade, etc. Now let's move towards the first point, Mughal rule in India. In the beginning of the 16th century, the political condition in India was somewhat disturbed. अभी जब अपना 16th century चालू हुआ तब क्या था? Political condition in India, it was disturbed. The Sultanate rule had begun to decline after Muhammad Taghlib. अब क्या था? सल्तनत पीरियड जो था, जो दिल्ली में जो सल्तनत वगैरह थे, उनका पीरियड जो था, it started declining after Muhammad. The Delhi Sultanate broke down completely and many new independent kingdoms merged in the north, central and south India. अब क्या हुआ? और दिल्ली सल्तनत क्या हुआ? It broke down completely, like पूरी तरह से जो इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत था ना, it broke down into small provinces and many new independent kingdom came up now. और ये नए इंडिपेंडेंट किंगडम कहाँ पे हुए? It emerged in the north, central and south India. The Mahamani kingdom got divided into 5 branches. See, we have seen in the last chapter, the Mahamani kingdom, it got divided into 5 branches. The prosperous Vijayanagar empire was destroyed by the 5 Islamic ruling houses in the south. अभी जो इस विजयनगर का जो empire था, it was completely destroyed by the ruling house in the south. During the same period, Portuguese began to settle on the western coast of India. See, अब तक इतने टाइम तक क्या हुआ था? ये ईरान वगैरह, ईरान ये टर्किश पीपल के, बट डिड पोर्तुगल पीपल कम येट नाउ? नो. इतने टाइम तक पोर्तुगीज नहीं आए थे. नाउ व्हाट हैपेंड? सी, नाउ पोर्तुगीज पीपल केम. अब इसी टाइम क्या हो गया? धीरे धीरे पोर्तुगीज आने लगे इंडिया में एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. The traditional military system of the Indian rulers in the medieval period was not
that capable of facing the onslaught of new challenges. अभी जो अपना ट्रेडिशनल मिलिट्री सिस्टम था, इंडियन रूलर्स के पास सबका अपना एक मिलिट्री सिस्टम था, बट अपना मिलिट्री सिस्टम कैसा था, इट वॉज टू ओल्ड, मतलब एकदम पुराना मिलिट्री सिस्टम था. और वो सिस्टम से जो न्यू चैलेंजेस आ रहे थे, जो ये पोर्तुगीज वगैरह आ रहे थे, इन सबको रोकना इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द इंडियन रूलर्स एट दैट टाइम. The Indians were not familiar with the modern weaponaries. अब भी Indians were not familiar with the modern weaponaries. अब ये पोर्तुगीज वगैरह आए, they came up with modern weaponaries. They had very good tactics. Like वो जो कोस्ट है ना, वो कोस्ट के उधर से लाइक अंदर छुप छुप के झाड़ों में छुप के अटैक करना, ये सब पोर्तुगीज को बहुत अच्छे से आता था. तो यहाँ पे क्या हो गया, द पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज के साथ ये टैक्टिक के साथ वी इंडियन फाइटिंग इज इम्पॉसिबल. तो क्या हो गया, ये सारे उनके पास जो एडवांस वेपनरीज थे, ये जो एडवांस टेक्निक थे, इससे वी इंडियन वेर नॉट फैमिलियर. टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल दिस द मुगल एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया. अब देख रहे हैं कि बाबा इंडिया के जो रूलर्स है उनको ये अब बाहर, और जो बाहर से पावर आ रही है, जो बाहर से रूलिंग किंगडम्स वगैरह रूल करने के लिए किंग वगैरह आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए इंडियंस वर नॉट कैपेबल, ruling kings were not capable, and on the other hand India didn't have any weapons and all modern weapons के बारे में ना उनको knowledge था ना उनके पास थे. तो इसी चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए मुगल established their rule in India. Now for additional information, Mughal or Mughal are the corrupted form of the Persian word Mongol. The Mughals had come from Central Asia. They were the descendants of Mughal rule Genghis Khan and Turkish ruler Taimur Lung. The Mughals held great pride in their ancestry. The stories of Taimur's attack on India inspired Babur to attack out exceptions in India. Babur was born in Uzbekistan. He was the king of Farghana province in Central Asia. He defeated the Lodi Afghans of North India and established the Mughal rule in India. The Mughal ruled over India for more than 3 centuries. The grand army of Ibrahim Lodi could not survive in front of Bahadur in the Battle of Panipat. अब क्या है, इब्राहिम लोडी ये जो था उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, वो क्या, इट कुड नॉट सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ बहादुर. अब बहादुर के सामने इब्राहिम लोडी की आर्मी was unable to survive and it was in the battle of Panipat, and as a result Lodi was defeated. Bahadur defeated Ibrahim Lodi on the strength of configuration skill, strong artillery, system of secret intelligence and strong leadership. अभी बहादुर ने, लोडी की इतनी बड़ी आर्मी थी, इब्राहिम लोडी की इतनी बड़ी आर्मी थी, फिर भी बहादुर ने उसको डिफीट कर दिया. कैसे डिफीट किया, ही हैड वेरी गुड स्किल्स, स्ट्रॉन्ग आर्चरीज थे उसके पास, देयर वाज अ सीक्रेट इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग थी. ये सब पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ, बहादुर won the war tactfully and with proper skills and leadership. बहादुर established his rule in Delhi. अब बहादुर ने क्या किया, उसने अपने रूल पूरा दिल्ली पे जमा दिया. He got control over Delhi. The Rajput king came together under the leadership of Mewar king Rana Sanga to counter him. अब राजपूत किंग्स, अब राजपूत के जो किंग्स थे वो सारे एक साथ आए under the leadership of Mewar king Rana Sanga to counter him, ताकि वो काउंटर बहादुर को डिफीट कर सके, बहादुर के ऊपर वॉर कर सके. बहादुर डिफीटेड द राजपूत्स इन द बैटल ऑफ कानवा. बट क्या हुआ, बहादुर ने इन राजपूत्स को भी डिफीट कर दिया एंड इट इज नोन एज द बैटल ऑफ कानवा. आफ्टर बहादुर हिज एल्डर सन हुमायून असेंडेड द थ्रोन. अभी बहादुर मर गया, अब बहादुर के बाद उसका बेटा हुमायूं, he came on the throne, he became the king. But Humayun was deprived from the kingdom due to the defeat at the hands of Sher Shah Sur of Bihar. But हुमायूं को क्या किया, अब किंगडम से निकाल दिया गया. क्यों, बिकॉज he got defeated at the hand of Sher Shah Sur of Bihar.
Bahadur made some reforms in the administrative setup. When this Sher Shah Suri, when he came on the throne, what he did? He made some administrative changes. He made some new administrative setup. He brought together the Afghan Sardars scattered in North India and established in Afghan rule. अब क्या किया उसने? What he did, जो अफगान सरदार जो स्कैटर्ड थे नॉर्थ इंडिया में एंड इधर उधर स्कैटर्ड थे, he bought and established the Afghan rule. उसने सबको एक किया and he established the Afghan rule. The descendants of Sher Shah was not sufficient. अभी इतना ही sufficient नहीं था. Hence, after the death of Sher Shah, हुमायूं regained his lost kingdom. अब शेर शाह के बाद क्या हुआ कि शेर शाह एक डेथ हो गई और हुमायूं ने क्या किया? अपना जो रीजन था वो वापस ले लिया. लाइक हुमायूं वॉज कंट्रोलिंग द दिल्ली बट शेर शाह डिफीटेड हिम एंड शेर शाह गॉट ऑफ दिल्ली का कब्जा उसने कर लिया था अपने पे. अब फिर क्या हो गया था? इसने वापस हुमायूं ने अपना जो लॉस्ट किंगडम था ऑफ दिल्ली वो वापस ले लिया. आफ्टर हुमायूं his son Akbar ascended the throne. अब हुमायूं के बाद कौन आया? उसका बेटा अकबर आया. He became the king. He proved to be the greatest Mughal emperor because of his quality such as high intelligence, tolerance, firmness and courage. अब क्या हो गया? Akbar, what happened? He came on the throne and he is said to be one of the great emperor. Why he is said to be a great emperor? बिकॉज ही हैड सर्टन क्वालिटी जो बाकी किंग से थोड़ा सा उसको अलग करती थी. वो क्वालिटीज़ क्या थी? ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट, ही हैड सम टॉलरेंस लेवल, ही वॉज फर्मनेस एंड करेजियस. द किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय बहादुर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ग्रेट एम्पायर बाय अकबर. अभी जो किंगडम बहादुर ने जो एस्टेब्लिश किया था, हाँ, किंगडम यानी छोटा रहता, एम्पायर यानी पूरा कब्जा करना. इट टर्न इनटू अ ग्रेट एम्पायर बाय अकबर. अकबर ने क्या किया? वो किंगडम से उसको पूरा एम्पायर बना दिया. ही एस्टेब्लिश्ड हिज रूल फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड कश्मीर टू वराह खानदेश. अब अकबर ने अपना रूल कहाँ से चालू किया? देखो, ही एस्टेब्लिश्ड हिज रूल फ्रॉम काबुल टू बंगाल, काबुल से लेके बंगाल तक. देन फ्रॉम कश्मीर टू वरहत खानदेश, कश्मीर से खानदेश तक गया वो. ड्यूरिंग दिस पीरियड राणा प्रताप, द रूलर ऑफ मेवाड़, पुट अप अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट अकबर. अभी जब ये अकबर सारा व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज किंगडम, व्हाट राणा प्रताप, ही वाज द रूलर ऑफ मेवाड़, ही पुट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट अकबर. अकबर could never win a war with राणा प्रताप. अकबर और राणा प्रताप के बीच में काफ़ी वॉर वगैरह हुए बट अकबर कभी राणा प्रताप से जीत नहीं पाया. हेंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर ही एडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ परसुएशन विद द राजपूत्स. अभी एक्सपेंशन करने के लिए उसने क्या किया? उसने स्ट्रेटजी ऑफ राजपूत यूज की. अकबर हैड रियलाइज दैट इफ द मुगल रूल हैज टू बी स्ट्रेंथन इन इंडिया देन he had to adopt non-offensive policy which would be popular. मतलब ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं जाने का. अगर अकबर ने एक चीज़ रियलाइज की कि अगर मुगल रूल अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है इंडिया में तो ज़्यादा ऑफेंस नहीं करने का हर पॉलिसी, लाइक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं निकालने की जिससे इंडियन लोग अपोज करें. आफ्टर अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब रूल्ड एफिशिएंटली. अभी अकबर के बाद कौन कौन से रूलर आए? आफ्टर अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब रूल्ड एंड दे रूल्ड इन अ प्रॉपर वे. औरंगजेब attempted to expand his empire in the Deccan with prolonged campaign. Now, what Aurangzeb did? Aurangzeb tried to expand his empire in the Deccan with prolonged campaign. मतलब कंटिन्यू कैंपेन करता था, कंटिन्यू अटैक वगैरह करते के उसने डेक्कन वगैरह पूरा कॉन्कर कर लिया था. औरंगजेब रिजाइन इज नोटेबल फॉर हिज वॉर्स इन फ्रंटियर प्रोविंसेस, हिज पॉलिटिकल पॉलिसी इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, स्टैबिल रीजन्स पॉलिसी एंड मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट. अब जब औरंगजेब था तब
We have seen about his war in the frontier province in this political policy in North and South India. अपन ने औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बारे में भी काफ़ी स्टोरी सुनी होगी, लाइक औरंगजेब कितना स्ट्रांग था और उनके सामने अपने शिवाजी महाराज कितने से छोटे दिखते थे, बट स्टिल शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को मारा, राइट. स्टिल औरंगजेब वाज डिफीटेड बाय शिवाजी महाराज. एक बार तो पन्नाला के फोर्ट पर से शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चकमा देके he went over from there. So औरंगजेब बहुत स्ट्रांग था, बट शिवाजी महाराज स्ट्रांग के साथ क्लेवर भी थे. तो औरंगजेब के बारे में अपन ने काफ़ी स्टोरीज भी सुनी होगी. तो औरंगजेब क्या कर रहा था, वॉर करते करते ही वॉज टेकिंग ऑल द इंडिया. ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉलिसीज इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, देन रीजनल पॉलिसी एंड मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट. दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ मराठा किंगडम. जब औरंगजेब आया तब वो पीरियड क्या बोलते हैं अपन, इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ मराठा किंगडम इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ इंडिया एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर. सी नाउ हियर यूरोपियन ऑल्सो केम. यहाँ पे यूरोपियन भी आ गए. यूरोपियन के साथ भी मराठा का वॉर चालू है. यूरोपियन अपना पूरा कब्जा इंडिया पे जमाने की ट्राई कर रहे हैं, और उसी वक्त क्या हो रहा है, मुगल्स पावर इज डिक्लाइन. मुगल का पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है. फाइनली आफ्टर मैथ ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 CE saw the end of मुगल रूल अंडर बहादुर शाह. अब फाइनली क्या हो गया, जब स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वगैरह सब चालू था, and all this was going on, the Mughal period came to the end and the last ruler of Mughal empire was Bahadur Shah. Now we'll move towards the next point, that is reform in revenue system. Akbar made further reform in the revenue system implemented by Sheher Shah. Now see, excuse me, what Akbar did, Akbar made some changes in the revenue system जो शहर शाह ने लागू किए थे. अब शहर शाह ने भी कुछ सिस्टम्स वगैरह लागू किए रहेंगे, कुछ हुआ रहेगा. तो व्हाट अकबर डिड, अकबर चेंज सम रेवेन्यू सिस्टम. दिस बॉट अ सर्टन डिसिप्लिन इन द मुगल रेवेन्यू सिस्टम. इससे क्या हो गया, एक सर्टन डिसिप्लिन आया, एक प्रॉपर डिसिप्लिन आया इन द मुगल रेवेन्यू सिस्टम. ही ग्रांटेड द कल्टिवेबल लैंड बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक लैंड सर्वे. उसने क्या किया, अपनी कल्टिवेबल लैंड दी. किस पे बेस पे दी, ऑन सिस्टमैटिक लैंड सर्वे. लाइक उसने पूरा लैंड का सर्वे किया और उस हिसाब से ग्रेड किया लैंड का, और उस बेसिस पे सबको लैंड वगैरह भी दी उसने. द लैंड वॉज क्लासिफाइड इंटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल यील्ड. अब उसने जो लैंड है आपकी, और जो भी लैंड है जिसके पास भी है, वो लैंड वॉज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स अब बेसिस ऑफ एनुअल यील्ड. मतलब आपको एनुअली कितना क्रॉप आता है आपके लैंड पे, उस हिसाब से आपका लैंड वॉज कैटेगराइज्ड. अब लैंड की क्या क्या कैटेगरी थी, फर्टाइल, इनफर्टाइल, इरिगेटेड एंड ड्राई क्रॉप लैंड. लाइक आज भी अपन सुनते हैं ना, फर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल लैंड, इरिगेटेड, ड्राई क्रॉप लैंड. तो उस वक्त भी वैसा ही था. इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग ऑफ फार्मर्स वे रजिस्टर्ड. अभी कुछ फार्मर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी खुद की लैंड है, तो उसने वो फार्मर के नाम पे रजिस्टर करके ले ली. एंड एवरेज ऑफ द एनुअल यील्ड इन द लास्ट 10 years was calculated, and 1/3 of this average yield was fixed as the basis for the tax to be paid. अभी what he did, उसने 10 साल का एवरेज एनुअल यील्ड, लाइक 10 साल में कितना आपका ये लैंड आपको क्रॉप देता है, कितना आपको प्रॉफिट देता है, वो सारा कैलकुलेट किया था. और वो 10 साल का कैलकुलेट करने के बाद 1/3 पोर्शन वुड बी गिवन एज अ टैक्स, वुड बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस टू फॉर द पेड टू बी टैक्स. उसके ऊपर आपका टैक्स डिसाइड किया जाता था. लाइक 10 साल में आपकी ज़मीन पर से आपको कितना मिलता है, उसका एवरेज निकाला गया था. एवरेज निकालने के बाद उसका 1/3 पोर्शन वुड बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स. Document known as Kubaluyat and Patha were prepared from the farmer after fixing of the tax rate.
अब डॉक्यूमेंट्स भी सर्टन बनाए जाते थे, लाइक कुबायता एंड पत्ता, ताकि फार्मर के पास से कितना टैक्स कलेक्ट करना है अपने को, ये सारा उस पर फिक्स्ड रेट रहता था। जैसे देखो आज अपने पास लाइट बिल है, वाटर बिल अपन किस बेसिस पे भरते हैं, आप जितना वाटर कंज्यूम करते हो उस पर भरते हो ना। लाइक अब मीटर बिठाया हुआ है, सबके घर में पानी का मीटर होगा, आप जितना पानी यूज़ करते हो उतना आपको टैक्स पे करना है, राइट। तो उस वक्त भी वैसा ही था, आपका इतना लैंड है और आपका एनुअल यील्ड इतना है इस लैंड का, तो यू आर सपोज टू पे दिस मच टैक्स, और ये सारा रेट फिक्स था और ये सारा रिटर्न फॉर्म में था। हाँ, द टैक्स वॉज कलेक्टेड इन कैश और इन काइंड। अब वो टैक्स कैसे कलेक्ट कर होता था, द टैक्स वॉज कलेक्टेड इन कैश और इन अ काइंड। द टैक्स थस फिक्स्ड वॉज एप्लीकेबल फॉर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा, जो टैक्स आप पे फिक्स हुआ है वो 10 साल तक आपने उतना ही टैक्स भरने का। दिस ऑफर्ड कंसिडरेबली रिस्पेक्ट टू फार्मर फॉर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अब फार्मर क्या है, 10 साल तक उतना ही टैक्स पे करने के लिए बाउंड हो जाता था। डॉक्यूमेंट नोन एज कुबैत एंड पट्टा were prepared from the farmer after the fixing of the tax rate. The tax was collected in cash or in kind. The farmers were sanctioned loan for tilling the land which could be repaid in installment. अभी फार्मर्स को लोन भी चाहिए ताकि वो लैंड को अच्छे से रख सके, अच्छे से उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते थे, तो वो उनको लोन भी मिलता था और वो जो भी रीपे करना है इट कैन बी डन इन द इंस्टॉलमेंट बेसिस। लाइक आज भी अपन लोन लेते तो अपन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लोन क्लियर करते थे ना, तो ये शाहजहाँ के वक्त भी ऐसा ही था। कंसेशंस वर ऑल्सो ग्रांटेड टू द फार्मर्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज लाइक फैमिन, फ्लड एंड एपिडेमिक। अभी कंसेशंस भी दिया जाता था। सी एक शहनशाह, ये कितना अच्छा राजा था, कितना अच्छा राजा था। देखो ये अकबर, ये कितना अच्छा राजा था। बट ब्रिटिश शुरू कुछ भी आए, नेचुरल कैलेमिटी आए, फ्लड आए, फैमिन आए, कुछ भी आए, आपको इतना टैक्स पे करना है तो पे करना ही है। बट देखो इसके पीरियड में ऐसा है क्या, अगर फेमाइन, फ्लड कुछ भी आ जाए तो उनको टैक्स के लिए कंसेशन वगैरह मिल जाता था। देयर वेर द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ एम्परर अकबर। अभी बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसी था अकबर के। तोडारमल in Emperor Akbar Court is known for his insight regarding the welfare of common people. अब तोडारमल जो था, he was in the Akbar Court. उसका क्या काम था कि लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखे। He was meant for the proper welfare of common people. His insight were instrumental for Akbar's land reform. अभी जो अकबर्स के लैंड रिफॉर्म में जो अपने इतने सारे चेंजेस देखे, क्या देखे, उसमें तोडारमल का बहुत बड़ा हाथ है। इवन ही टुक एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू सिस्टम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, that is art, architecture and literature. The reign of the third emperor Akbar, Jahangir and Shah Jahan was a period of peace, order and prosperity. अभी जो रिजाइन है, अभी ये 3 एम्प्रर का जो पीरियड था, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, इट वॉज अ पीरियड ऑफ पीस, ऑर्डर एंड प्रॉस्पेरिटी। अ न्यू एरा बिगैन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक नया पीरियड आया, एक नया इरा आया इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। The depicted design on the marble wall of the mosque, tombs and palace are an evidence of the highly advanced skill of art and architecture. अभी जो डिज़ाइन किए थे मार्बल वॉल्स पे, लाइक मार्बल की वॉल बनाई है उन्होंने मॉस्क्यू, टोम्स एंड पैलेस में, उस मार्बल की वॉल पे आप देखोगे कि बाबा कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन कार्व्स की है। इट वॉज इन अ हाईली एडवांस स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके ऊपर एक एडवांस स्टाइल है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। द कार्व्ड डिजाइंस ऑन द टोम्स ऑफ सलीम क्रिस्ट एट फतेहपुर सिकरी एंड ताज महल इज paramount एग्जाम्पल। अभी जो डिज़ाइन कार्व की है
on the tombs of Salim Chist at which is at फतेहपुर सिकरी। मतलब ये जो वॉल पे वगैरह उन्होंने जो कार्विंग की है वो बहुत अच्छी है। एंड ताजमहल, एवरीवन मस्ट माइट बी अवेयर ऑफ दिस ताजमहल। ताजमहल किसने देखा है? इफ यू कैन सी कि पूरा मार्बल का बना हुआ है और मार्बल पे पूरा उन्होंने पेंट वगैरह किया हुआ है, पूरी डिज़ाइन बनी हुई है एंड इट्स वेरी यूनिक। आज भी पर एसिड रेन की वजह से क्या हुआ है, वो ताजमहल का वॉल वगैरह जो है ना, बाहर से वगैरह ताजमहल की शाइन कम हुई है और वो वॉल वगैरह थोड़े ख़राब हुए हैं। बहुत सारा रिसर्च एंड बहुत से आर्कोलॉजिस्ट दे आर ट्राइंग टू मतलब वो थोड़ा सा पॉलिश करके करके ठीक करने का ट्राई चल रहा है। आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्या हुआ है, बट उसका जो शाइन है ना वो ख़राब हो चुका है। अभी ताजमहल का शाइन वगैरह ख़राब हो चुका है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ा है। लाइक आप एंटर करते एक बड़ा कमान है, उसके अंदर से आप जाना है कमान के अंदर से, और बहुत बड़ा ऐसे गार्डन फाउंटेन सब है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर एंड जहांगीर द आर्ट ऑफ आइवरी कार्विंग रिसीव्ड रॉयल पेट्रोनेज। अभी अकबर और जहांगीर के पीरियड के वक्त क्या हुआ, द आर्ट ऑफ आइवरी कार्विंग, आइवरी कार्विंग को क्या मिला, एक रॉयल पेट्रोनेज मिला। द मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्सियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अब मुगल पेंटिंग कहाँ से आई? इट केम फ्रॉम द पर्सियन स्टाइल of painting. There were miniature painting of Persian style in the manuscript of बाबुरनामा। अभी छोटे छोटे स्टाइल दिख रहे थे आपको पर्सियन स्टाइल के, लाइक मिनिएचर पेंटिंग दिख रहे थे पर्सियन स्टाइल के इन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बुरमाना। द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिसीव्ड एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर। अभी आर्ट ऑफ पेंटिंग है, उसको एक नया प्रोत्साहन मिला, एक नई राह मिली। कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर। ही अपॉइंटेड स्किल्ड पेंटर्स इन हिज कोर्ट। अभी उसने, अकबर ने क्या किया, उसने अपने कोर्ट में एकदम स्किल्ड पेंटर्स थे उनको अपॉइंट किया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर पेंटिंग्स वेर डन बेस्ड ऑन द कोर्ट एंड हंटिंग सीन। अभी जहांगीर पीरियड में पेंटिंग्स किस पे बनते थे? इट वर बेस्ड ऑन द हंटिंग सीन्स पे वगैरह ज़्यादा पेंटिंग वगैरह बनते थे। द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड वर डन इन द मोर रियलिस्टिक स्टाइल विच इज़ वाइब्रेंट एंड अट्रैक्टिव। अब जो पेंटिंग करते थे उस वक्त उस ज़माने में वो बहुत ज़्यादा रियल थी। इट वॉज बहुत ज़्यादा ऐसे रियल दिखता था और प्रॉपर अच्छे से कलर यूज़ किए थे एंड इट यूज टू अट्रैक्ट द पीपल। दिस पेंटिंग पोर्ट्रे बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमन फिगर्स एंड नेचुरल सीनरी। अब पेंटिंग में क्या क्या ड्रॉ किया जाता था? पेंटिंग में क्या रहता था? बर्ड्स के पिक्चर्स वगैरह रहते थे, एनिमल्स रहते थे, क्लाउड फॉर्मेशन, लाइक बादल सब साथ में आ रहे हैं, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमन फिगर्स एंड नेचुरल सीनरी सारा रहता था। अभी ये पेंटिंग देखो विच इज़ ऑन पेज नंबर 112। सी हाउ रियलिस्टिक इट इज़, लाइक देखो लायन उन्होंने कैसे ड्रॉ किया है एंड ऑल, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट पेंटिंग, इज दैट सो? ओके, नाउ आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट आगे का पार्ट इसका आर्ट लिटरेचर, इसका आगे का पार्ट विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। लाइक इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 113। ओके, थैंक यू।